हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हैं और पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय फिजिक्स क्लास विच इज ऑफ क्लास 11th स्टैंडर्ड। सरल रेखीय गति के हम लोग 5 लेक्चर्स में काफी कुछ पढ़ लिया है। आज हम आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन 6 के लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अब उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वी हैव टेकन रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उसमें देखिए क्वेश्चन इज रिटन हियर, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई s is equal to 5t minus 10t square, where s in meter and t in second. Find first initial velocity of the particle and second velocity of the particle at t is equal to 0, and third, and also find whether the particle is moving with constant velocity or constant acceleration. Let me again explain you the question. Question is that we have given a displacement which is function of time or position function of time in a straight line moving particle, and we have to find out its initial velocity, and also we have to find out the velocity of the particle at time t is equal to 2 seconds. And third part of the question is that we have to check whether the particle in this given condition is moving with constant velocity or is moving with constant acceleration. तो how we can solve it? तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमने चर्चा किया था पिछले लेक्चर्स में कि if the particle is moving on a straight line path, its displacement is function of time, then we can calculate the instantaneous velocity first. हम उसकी तात्कालिक वेग की गणना कर लेंगे किसी टाइम टी पर, एंड देन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0 इन दैट एक्सप्रेशन वी विल हैव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड सेकेंडली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 2 वी हैव वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड थर्ड इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कैलकुलेशन is a function of time, then it means it is not a constant, and then differentiate again means calculate the instantaneous acceleration. If that expression comes out to be a function of time, then it is not a constant. If it is a constant, a after calculation comes out to be not a function of time, then it means naturally obviously the particle is moving with constant or uniform acceleration. So that's the whole idea of the question. Now let us solve this. We have given s is equal to 5t minus 10t square. That's the given. And first we have to calculate the instantaneous velocity. The instantaneous वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं तात्कालिक वेग, कैसे मिलता है? v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एस, दैट इज डी डी टी ऑफ एस मीन्स 5t माइनस 10t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 5t माइनस डी डी टी ऑफ 10t square, that is equal to 5 ddt of t minus 10t square. We got ddt of t square, that is we have 5 into 1 minus 10 into 2t, that is equal to 5 minus 20t. We have v is equal to that much. Okay, second वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हमारे पास आई 5 माइनस 20t,
and since velocity is function of time, so it is not moving, the particle is not moving with constant velocity. That's the अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट by putting t is equal to 0 in equation second, we get v is equal to u. It is initial velocity u is equal to 5 minus 20 into 0, that is 5 meter per second. ओके, इनिशियल फर्स्ट पार्ट तो आ गया हमारा, बहुत सिंपल है. आप लोग डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं इसका, द होल आइडिया इज दैट डी डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n टी रेज टू द पावर n माइनस 1. दैट्स द फॉर्मूला विच इज यूटिलाइज्ड हियर. तो चूंकि यहाँ t था तो t की पावर 1 इंटू टी की पावर 0, टी की पावर 0 मीन्स 1 ही हुआ, तो ऑलमोस्ट 1 आ गया. और टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2t यहाँ लिख दिया. अब हम इसको और आगे करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 2 seconds, that is v at t is equal to 2 seconds is equal to v at t is equal to 2 का मतलब क्या हुआ, इसे में रख दीजिए 5 minus 20t, that is 20 into 2, that is equal to 5 minus 40, or you can say minus 35 meter per second. ओके, तो ये आ गया टी स्क्वायर. एंड थर्ड पार्ट जो कि हमें लगाना है कि वी हैव टू चेक वेदर the velocity, यहाँ तो velocity time dependent, the acceleration of the particle, that is a is equal to क्या होगा, dv upon dt, that is equal to d dt of इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी विच इज फंक्शन ऑफ टाइम जो यहाँ पर मिला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेना है. उसमें लेंगे तो डी डी टी ऑफ 5 माइनस डी डी टी ऑफ 20t, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 20, यू कैन से माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड फ्रॉम दीज टू इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी कंक्लूड दैट from second and third we have v is function of time and a is not function of t, so the particle is moving with constant एक्सेलरेशन. ये बात समझ में आ गई. चूंकि पार्टिकल का इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो वन कैन से दैट एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट, सो द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन रादर कांस्टेंट वेलोसिटी. दोनों तो एक कांस्टेंट नहीं हो सकती. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, तो दोनों तो हो नहीं सकते. और यहां पर हमें यही देखना है v इज फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहां टाइम इन्वॉल्व है. ओके, टाइम इज देयर. बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 3.5 क्वेश्चन है, यानी चैप्टर 3 का 5th क्वेश्चन है. रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. So let me write the question. A jet airplane traveling with the speed of 500 km per hour ejects the product of combustion at a speed of 1500 km per hour relative to jet plane
what is the speed of latter with respect to the observer at ground। ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है और उसे स्पीड ऑफ जेट जो है महसूस हो रही है 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब इसलिए ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है जेट प्लेन। एट द सेम टाइम द वेलोसिटी और यू कैन से द स्पीड ऑफ कंबशन, यानी फ्यूल जो निकल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा फ्यूल जेट प्लेन के मूवमेंट के, तो इट इज जस्ट ejecting with speed or velocity 1500 kilometer per hour with respect to the jet plane. Here we have to calculate the speed of combustion of gases. Okay, here suppose this is a jet plane, fuel is coming out here, this is the combustion gases, combustion यानी ईंधन गैस है, गैसेस निकल रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द जेट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज Vj अपवर्ड, Vcj इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबस्शन विद रिस्पेक्ट टू द जेट प्लेन। वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ, और यू कैन से द स्पीड ऑफ द कंबस्शन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। लेट the velocity of the combustion with respect to ground is Vc, and the direction of velocity of Vcj is taken positive. Okay, so we have Vcj is equal to 1500 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि जो फ्यूल ग्राउंड की तरफ आ रहा है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो Vj व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन -500 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी Vcj इज नथिंग बट Vc माइनस Vj, एंड वी हैव टू कैलकुलेट Vc, that is Vc is equal to Vcj plus Vj, and Vcj is nothing but 1500 plus minus, okay, minus 500, that is equal to 1000 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ट्रिक जानना आवश्यक है, क्या निकालना है, किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे। अगर यहाँ ये ध्यान दे दें, आप केवल ये कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट डायरेक्शन के हिसाब से न लें, तो यहाँ दोनों जोड़ देंगे और जोड़ते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सोल्यूशन गलत हो जाएगा। सो इस तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पर एक आपको नया क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड, सपोज टू ट्रेन्स of having length 150 meter and 200 meter are moving with speed with velocity is how much? Suppose 60 kilometer per hour and 40 kilometer per hour in opposite direction.
find the time interval, find the time interval in which they cross each other. ओके, क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए। दो ट्रेन हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, हैविंग स्पीड, एक का 60 किलोमीटर पर आवर है, एक का 40 किलोमीटर पर आवर है। बोथ ट्रेन्स हैव लेंथ, दे आर 150 मीटर एंड 200 मीटर। ओके, we have to calculate the time interval in which they cross each other. दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय में क्रॉस करती है। यहां पर जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यहां पर यह नहीं कितनी दूरी से आ रहे, यहां पर यह माना जा रहा है कि ट्रेन चली और मिनिमम टाइम इंटरवल एक तरह से कह सकते हैं कि जिसमें वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मैक्सिमम टाइम इंटरवल की जब बात करेंगे तो वो लंबी दूरी से आ रही हैं तब क्रॉस करती हैं तो समय बढ़ जाएगा, लेकिन मिनिमम टाइम इंटरवल में ट्रेनें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ देयर इंडिविजुअल द टोटल लेंथ ऑफ देयर इंडिविजुअल लेंथ्स। तो इसको हम लोग देखते हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ train A with respect to train B, that is VAB is equal to VA plus VB। वही जैसे तो माइनस रहेगा, VA plus VB। क्यों हमने सम कर लिया? मैग्नीट्यूड लेने के लिए मैग्नीट्यूड VAB इज इक्वल टू VA प्लस VB क्यों कर लिया? क्योंकि विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहां पर जब हम करेंगे तो सम कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 40 दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। एंड इफ यू कैलकुलेट दिस इन मीटर पर सेकेंड देन 100 अप इंटू 5/18। ओके, तो 2 9 जा 18, 50, that's equal to 250/9 meter per second. That's the speed of the train. Okay. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का फैक्टर है 5/18। ओके, द डिस्टेंस traveled by any train in crossing other is equal to sum of their lengths, that is equal to 150 plus 200, that is equal to 350 meter. So the distance time taken, time is equal to distance upon speed or velocity. That's you can write distance 350 upon 250/9, that is 350 into 9/250. 0 0 cancel out, 5 7 ja, 5 5 ja, that is 63/5. That means 12.6 second. So that's the time interval in which one train crosses the other. तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, दैट्स वाई डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, वो दोनों के सम के इक्वल होगा। और इस रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड अगर हम मानेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। अब हम नया क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑफ मोशन से रिलेटेड है।
A car moving along a state highway with a speed of 126 km per hour is brought to a stop within 200 meter. What is the retardation of the car and how long does it take to stop the car? तो इसका सॉल्यूशन जानने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन फिर से समझाते हैं। पास करके क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और पहले अपने से ट्राई करिए। अगर आ जाता है दैट्स वेरी गुड, नहीं तो हम सॉल्व करते हैं। ओके, पास कर लिया, सॉल्व करो। चलो फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट हाईवे विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 126 किलोमीटर पर आवर से किसी हाईवे पर, स्ट्रेट हाईवे पर चल रही है, उसको रोका जाता है। जब वो 200 मीटर चलती है तो रोक दिया जाता है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? डेफिनेटली आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, आपको रिटार्डेशन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन उसमें देना पड़ेगा निगेटिव डायरेक्शन में। दैट्स वाई स्टॉप हो जाएगी। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड दी गई है और कितने समय में ये रुकी और किस रिटार्डेशन से ये रुकी। तो सबसे पहले वी हैव गिवन s इज इक्वल टू 200 मीटर। गिवन कंडीशन सबसे पहले लिखा करो। एंड व्हाट इज गिवन? u इज गिवन हियर 126 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 126 इंटू 5/18। ओके, तो 7 दैट मीन्स 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए फैक्टर है 5/18, लोग जानते हैं। तो अब यहां पर when the car stop, then what happens? Final velocity of the car is 0. From third equation of motion, we have v square is equal to u square plus 2as से हमें v0 मिलना है। ओके, तो रिटार्डेशन है तो डेफिनेटली v स्क्वायर माइनस 2as, सॉरी u स्क्वायर, तो ये 0 है सिंस a इज नेगेटिव हियर। अब a की वैल्यू क्या मिलेगी? u स्क्वायर अपॉन 2s दैट इज इक्वल टू 35 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 200। अब 5 4 जा 20, 5 7 जा 5 7 जा 5 8 जा, सॉरी 5 8 जा, हाँ ओके। तो अब ये हो गया 49 अपॉन 16। That's with retardation, or you can say retardation, 3.106 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये तो रिटार्डेशन आ गया, बहुत क्लियर कट है। आपको v दिया है, u दिया है और यस भी दिया है, तो आपको ये निकालना है रिटार्डेशन है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर माइनस, अदरवाइज a माइनस में आता। Secondly, we have to calculate time. Okay, so in traveling that much of distance, what is the time? What was the time taken? V is equal to u minus 80 से अगर हम देखें तो t is equal to क्या हो जाएगा? u, ये तो 0 है, u अपॉन a दैट इज इक्वल टू u कितना है आपका 35, ओके, अपॉन a की वैल्यू क्या है 49 अपॉन 16, 7 5 जा 7 7 जा 80 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 1 1 4 एटलीस्ट इतना सेकेंड। So 11.4 second and 3.06 meter per second square. That is the answer of the given question. कार इस स्पीड से चल रही है स्ट्रेट लाइन ट्रैक पर, 200 मीटर चलने के बाद रुक जाती है।
रिटार्डेशन कैलकुलेट करिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नेगेटिव रखा, ये फाइनली दिया है फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि कार जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इसमें रखने के बाद हमको ये मिल गया इतना, इसमें v u माइनस ए टी। अब माइनस क्यों रखा, क्योंकि रिटार्डेशन है, तो t इक्वल टू यू अपान ए आ गया। तो ये कुल मिलाकर के आते हैं फिर आंसर है 11.43 या 11.4। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस इसमें से जो भी हैं एनसीईआरटी से या आपके पास जो बुक्स हैं, या यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और हम अगले वीडियो से अब वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन या आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए वी शुड हैव आइडिया ऑफ वेक्टर्स। तो हम अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से वेक्टर से स्टार्ट करेंगे।